close till I get up. Time is barely on our side. Hey everyone, so I'm shooting this video so that you can get motivated to clear this exam SSC CGL 2024 as the prelims date has been announced कि वो 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में है. I hope you are well prepared. Still, जो mistakes you can avoid during this preparation and during the last 1 month of this exam, that on that we are going to make a video and that will be helpful in your prelims as well as your mains. So today I'm going to show you one of the most motivating thing which can bring you to this job. सो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं. जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, बट एवरीबडी इज अ लॉट एक्साइटेड अबाउट व्हाट द सैलरी लुक्स लाइक. क्या आपको मिलता है, क्या करता है, व्हाट्स द ग्रॉस सैलरी, व्हाट्स द टैक्सेबल सैलरी, व्हाट्स द इन हैंड सैलरी. उसके बारे में आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट. सो लेट्स गो. So here is the salary slip for the month of July. You see the payment period, it's 1st July to 31st July. And the pay band is pay level 7. The basic pay in the starting was 44,900, but as I have completed a year in this service, that's why it has one increment is done, and that's why the basic pay now is 46,200. Along with that, there is a dearness allowance, which is 50% of the basic pay. This has been effective from January 1st, 2024. And now it is 23,100, which is 50% of your 46,200. Next is the house rent allowance. This is basically if you are having quarter, if you have been assigned quarter by the government, then this HRA will be directly deducted from your salary. If not, it will be reflected in your salary this way. Then there comes the TPT allowance. TPT allowance is basically the transportation allowance which the government is already giving you. It is 5,400 rupees. These are the emoluments that will be getting. That is, this is your gross salary. The gross salary comes down to 88,560 that you see. Next we come to the government recoveries. So here are the government recoveries. CGEGIS, which is the Central Government Employment Group Insurance Scheme. It takes around 60 rupees per month. And basically will provide you the insurance even in the case you die and all that. Next is the employment year 1. This is NPS. NPS is a new pension scheme के अंदर जो चल रहा है. A part of your salary is deducted and हर month इसमें जाता है, तो it is 6930 in this. Next is the income tax. Income tax बहुत ज़्यादा वेरी करता है. टोटल जो भी आपका डिडक्शन होगा टैक्सेबल सैलरी जितनी भी आपकी बनेगी उसके हिसाब से दिस विल फ्लक्चुएट. एज ऑफ नाउ बहुत टाइम से 5500 डिडक्ट हो रहा है. CGHS इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो आते हैं. तो बेसिकली इसमें ये फ़ायदा है कि इफ़ यू हैव अ CGHS कार्ड एंड आपको कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने हैं तो जितना भी एक्चुअल अमाउंट है उसका कुछ पार्ट ही आपको देना पड़ेगा एंड हेंस आपका जो है काफ़ी पैसा बच जाता है. ऑल्सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफरल आपको मिल जाएगा टू अ गुड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी इनके अंडर आते हैं, CGHS के अंडर जो आते हैं. नेक्स्ट इज द हेल्थ एजुकेशन. Then the total government recoveries come down to 13,360. This is the total amount that will be deducted from your gross salary, and hence the total salary comes down to 75,200. This is the net pay and this is for the month of July. कभी कभी ऐसा भी होता है कि DA और HRA जो है वो increase हुआ in some period and that's when it will be shown as an arrear और वो आपकी सैलरी में रिफ्लेक्ट होगा. तो देयर हैड बीन टाइम्स कि 88,560 दैट यू सी ऑन द स्क्रीन वो कभी 90,000 क्रॉस भी किया है इन मेनी केसेस जहाँ पे हमें एरियर्स मिले थे. हर साल इंक्रीमेंट लगता है तो इट्स आइदर द जुलाई 1st और जनवरी 1st ऑफ एवरी ईयर जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा. गवर्नमेंट में एज यू नो इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट स्टिल आपका बेसिक पे उस तरीके से वेरी करता रहेगा. जब तक आप लेवल 7 में हो दिस इज़ द रेंज दैट यू विल फॉल इन टू. So this is the complete salary slip looks. This is how the complete salary slip looks like. This is how the PFMS account looks like. तो यहाँ पे जो आप मार्च, ये मैंने फाइनेंशियल या 23-24 का खोल रखा है, तो आप मार्च अप्रैल में ये पीरियड में आई हैड वर्कड इन GST.
तो उसकी सैलरी का है, तो सैलरीज जो हैं वो वेरी नहीं करेगी अंटिल यू आर इन टियर 1 सिटी। तो चेन्नई भी टियर 1 सिटी था और ये वाला भी है, दैट्स वाई सैलरी इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो आप देख सकते हो जो वेरिएशन आ रहा है टोटल सैलरी का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हर मंथ के लिए। सो मार्च में 79,000 समथिंग आई थी, अप्रैल में फिर हुआ, एंड यू विल सी द डिडक्शन। तो इनकम टैक्स मेरा इन 3 महीनों के लिए नहीं कटा था, फेबररी से मैंने ज्वाइन किया था बेसिकली, तो फेबररी तो वैसे ही अंडर इनकम टैक्स नहीं आएगा, जो टैक्सेबल इनकम है उसके अंडर नहीं आएगा। एंड देन दिस वाज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो मेरा यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं कटा था बिकॉज सारा का सारा इनकम टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम दी दिल्ली में जब मैं पोस्ट हुई थी उसके बाद से ही इनकम टैक्स डिडक्शन शुरू हुए हैं। तो जून से ही इनकम टैक्स डिडक्शंस हैव स्टार्टेड। तो यू सी पहले के मेरा जो डिडक्शंस थे वो बहुत कम थे, एंड आफ्टर जून इट हैज़ इंक्रीज्ड। तो दिस इज़ हाउ द सैलरी स्लिप, द व्हाट वी से the PFMS account salary looks like. This is my current financial year salary, how it looks like. तो मार्च में, अप्रैल में क्योंकि हमें DA और जो नेक्स्ट मंथ जो हमारा HRA था उसका एरियर मिला था, तो यू सी द ग्रॉस सैलरी हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली. सो दिस इज़ हाउ द वेरिएशन टेक्स प्लेस, एंड आई होप दिस मोटिवेट्स यू टू वर्क टूवर्ड्स दिस जॉब. सिटिंग जॉब है, ऑल्सो इतना वर्कलोड नहीं है, दिल्ली में पोस्टिंग है, एंड देन यू आर गेटिंग दिस मच सैलरी. तो आई थिंक इट इज़ अ गुड अमाउंट. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज. बाय बाय.